Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be dealing with the most important provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Basically, this is the part 2 video. Part 1 video I have made talking about the Negotiable Instrument Act 1881. That series also I will be continuing the same. But today I will be letting you know the important provisions which usually asked in the interview as well as in the mains examination or prelims examination, basically in the LIC, SEBI, RBI, bank, IBPS, SO. This post is generally for, I am dealing with only with the post of legal officers or law officers, legal assistant manager. So this video will be very helpful for the financial institution examinations. So let us discuss that. Basically what I have studied for and what I am letting you know is most important, so you jot it down. Evolution of the code. First I will be talking about the evolution of the code, and it has been introduced in the Lok Sabha on 21st December 2015, and it has been passed by both the houses of the parliament in May 2016, and the president assent was received on 28th May 2016. So now we will be dealing overview of the we will be discussing about the overview of the Insolvency and Bankruptcy Code. First, now we have to know the authority which usually deals with the cases of Insolvency and Bankruptcy Code are NCLT and DRT. And the most important concept which we have seen after the amendment of the Insolvency and Bankruptcy Code is information utility. What is information utility? Information utility contains the database of cases, talking about the pending of the case laws, status of the case laws, whatever you will be getting whatever it may be, you will get to know कि कितना cases pending है, क्या status है, कौन सा cases over हो गया, you will be knowing that. Now IBBI, it is a regulator, so ये भी आपको जानना है. And now the Insolvency and Bankruptcy Code, the most important purpose is, the most important purpose of this code is recovery and revival. पहले क्या था? पहले रिकवरी था. अभी अमेंडमेंट के बाद रिकवरी एंड रिवाइवल दोनों आ गया. रिवाइवल का मतलब क्या होता है कि आई एम कन्वर्टिंग द लॉस इनटू प्रॉफिट. पहले ऐसा कुछ नहीं था. तो कैसे करें, ये सब प्लानिंग्स रिवाइवल में आ जाते हैं. और नाउ ये जो कोड है वो बहुत ही क्विक प्रोसेस है. सो लेट अस नो द कंसेप्ट मोर डेप्थ. कंसेप्ट जो है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का, ये कौन सा स्टेट में हम लोग ये कोड को इन्वोक करते हैं? जब वैल्यू ऑफ एसेट रहता है ना, वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़. तो हम लोग को समझ जाना चाहिए ये वो स्टेट आ गया जहाँ पे इंडिविजुअल या कंपनी अपना डेप्थ जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी जो है वो यूज्ड किसके लिए होता है? इंडिविजुअल्स के लिए भी होते हैं, साथ ही साथ कॉरपोरेट और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होते हैं. जो इंडिविजुअल्स के लिए इंसॉल्वेंसी यूज़ होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बैंकरप्ट है. ऑब्वियसली एप्लीकेशन देना पड़ता है बैंकरप्सी का स्टेटस लेने के लिए एक अथॉरिटी को. और इंसॉल्वेंसी अगर यूज हो रहा है कोई कंपनी के, कोई कॉर्पोरेट के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी. और अगर इंसॉल्वेंसी को हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, इस इंसॉल्वेंसी है और अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, तो फॉर नॉन कॉर्पोरेट, सोच लो नॉन कॉर्पोरेट कौन हो गया? इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग बैंकरप्सी टर्म करेंगे. और कॉर्पोरेट के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विडेशन हम लोग को प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा.
तो ये अपने को जानना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी सिचुएशन जो होता है उसका 2 ऑप्शन होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। इंसॉल्वेंसी सिचुएशन usually has 2 options. The first one being recovery, revival, या आप बोल सकते हो resolution, और सेकंड वर्ड हो गया लिक्विडेशन। ये मैं आपको ओवरव्यू कंसेप्ट दे रही हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए और आप अच्छे से और पढ़ो आगे, क्योंकि कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है इसका। तो हम लोग आईबीसी रेगुलेटरी का मैकेनिज़म्स हम लोग अभी जान लेते हैं, तो ये हम लोग के लिए और हेल्पफुल रहेगा। आइए, आईबीसी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, फिर हम लोग प्रोविजंस के साथ भी डील करेंगे। पहले कंसेप्ट अच्छे से इनग्रेन कर लेते हैं। आईबीबीआई हो गया और एए हो गया। नाउ आईबीबीआई में आपका क्या क्या आ रहा है? आईपीए आ गया, आईपी आ गया, आईयू आ गया, और एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी में आपका क्या क्या आ गया? एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी में आपका आ गया एनसीएलटी और एक डीआरटी। तो ये जो आईपीए है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, यहाँ पे 3 रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स है। आईसीएआई सीए लोगों के लिए, आईसीएसआई सीएस लोगों के लिए, एंड आईसीएआई दैट इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोगों के लिए। देन आईपी हो गया, वो हो गया आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गया। और एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डेटाबेसेस ऑफ केसेस रहते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है डिसीजंस देने के लिए, रिजोल्यूशंस देने के लिए। और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी डेटाबेस ऑफ केसेस हो गया। फिर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी क्या हो गया आपका? एनसीएलटी और डीआरटी। एनसीएलटी अगर एपिलेट ऑथोरिटी में जा रहे हैं तो हो गया आपका एनसीएलएटी, नेशनल कॉमन लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कॉमन लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। फिर डीआरटी हो गया आपका डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल। फिर डीआरएटी हो गया डेप्थ रिकवरी एपिलेट ट्राइब्यूनल। फिर इसके बाद अगर कहीं जाना हो तो हायर अथॉरिटी अपना हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब नाउ सी, अगर इंडिविजुअल्स के लिए जाना हो या प्राइवेट फर्म्स हो गया तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। और एल्स कॉर्पोरेट्स के लिए IBBI is the best option, and we will be dealing with this in more depth now. अब हम लोग क्या करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन जानेंगे। इंसॉल्वेंसी में बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि इफ़ एनी पर्सन इज अनेबल टू पे डेब्ट, then such person or entity is treated as insolvent. Okay, now we will be talking about bankruptcy. Now bankruptcy, you must be knowing that it is a situation where application is made to an authority declaring the insolvency and seeking to be declared as insolvency. यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है that I want to be bankrupt. Okay, now we will be dealing with the third topic, that is liquidation. Liquidation में क्या होता है कि अगर वाइंडिंग अप करते हैं ना कंपनी को, तो उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। और ये इनिशिएट किससे होता है? इनिशिएट होता है बाय द रेगुलेटरी बॉडीज या क्रेडिटर्स हो गए एक्सेट्रा। Now, can you just tell me what is the purpose behind the enactment of this code? Obviously,
पहला हो गया कि कंसोलिडेट करेंगे एंड अमेंड करेंगे जो भी लॉज है रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी. सेकेंड हो गया वी आर गोइंग टू फिक्स द टाइम पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन of law in a time bound manner. So most important. Now the third one being we will be promoting like the purpose behind this enactment of this code is promoting entrepreneurship. Okay. Fourthly, it can be increasing the availability of credit. Okay. And the most important purpose can be we are going to establish a regulatory body for this law, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India, which we were talking earlier, that is IBBI. So it is the most important one, and we can here the maximize the value of assets of interested persons का maximize कर सकते हैं the value of assets. और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में मैंने बता ही चुका है आपको. नाउ वी आर गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कोड. इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 parts. It has 255 sections and 12 schedules. Now the part 1 contains the section 1 से 3 तक, talking about the preliminary. Okay. Now part 2 talking about the sections from 4 to 77, talking about insolvency, resolution and liquidation for corporates. Now part 3 starting from the section 78 to 187, talking about insolvency, resolution and bankruptcy for individuals and partnership firm. Now part 4 talking about dealing with the section 187 to 223, talking about insolvency professionals, agencies and information utilities. Now the last part being starting from section 224, ending section is 255, talking about the miscellaneous provisions. Now we are going ahead to the next concept, and that will be adjudicating authority, as I told you. Now IBC, we will be dealing with the IBC. IBC applied on corporates. IBC applies on corporates, but other than those in financial sector. Okay, this you have to remember, and this concept has been emerged from section 2. How? Now I will be telling about the section 2 more briefly so that you can understand this line. Even this is the most important line in section 2. The concept being I'm letting you know that section 2 of the Insolvency Bankruptcy Code 2016 applies to companies. Okay, and that company may be under CA, Companies Act, I mean to say. Second one being special law, which contains the provisions SBI and other financials act, which has been dealing with under the special law only. Now the second one being it applies to LLPs. Third one being partnership and proprietorship firm, both are included. Section 2 applies to those also. Personal guarantor also. To corporate debtors. Now what does it mean? Personal guarantor to corporate debtors. See, corporate debtors here means borrowers, the one who is borrowing the money. Okay. Now if I am borrowing the money and I am unable to pay, then one can sue to the personal guarantor. Say for instance, personal guarantor is being my father, so one can sue to my father even.
and the fifth one is individual. And this applying all this section 2 applies to all these 5 category in relation to insolvency, liquidation and bankruptcy. Now I was telling this line that IBC applies to corporates but other than those in financial sector. That is, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पब्लिक का पैसा जहाँ पे लगा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग सू नहीं कर सकते हैं. जैसे कि बैंक्स, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में, ARC हो गया आपका, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब में पब्लिक का पैसा रहता है तो आप सू नहीं कर सकते हैं. बट ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता है आपका NBFC में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स. यहाँ पे आपका नहीं करता है. कैसे नहीं करता है नॉन बैंकिंग ये सब में? क्योंकि कोई भी फाइल कर सकता है NBFC में यहाँ पे, पर अगर पैसा पब्लिक का लगा हुआ है NBFC में तो यहाँ पे भी सू नहीं कर सकता है. तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा यहाँ पे. नाउ अगर हम लोग IBBI के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो ये आप याद रखेगा कि ये बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर को 2016. इसका हेड ऑफिस है अपना न्यू दिल्ली में. और ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है. जो कंपनी का डेफिनेशंस हम लोग पढ़ते थे कंपनीज एक्ट में, वही है ये भी, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. और पर्पस ऑफ फंक्शन IBBI का क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या है कि परफॉर्म करे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इसके 3 हैं, हम आपको बताए थे, IPA, IP एंड IU. ठीक है. अब इसका हम लोग अगर कंपोजिशंस के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ 1 चेयरमैन है, 3 मेंबर्स है फ्रॉम ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट क्या क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. एक मेंबर है कि जो कि नॉमिनेट होता है किसके द्वारा, नॉमिनेशन है यहाँ पे RBI के द्वारा. और 5 अदर मेंबर्स भी है, वो भी किससे नॉमिनेट होता है, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट. एटलीस्ट 3 शुड बी फॉर द होल टाइम पीरियड. ये अपने को जानना है. आगे मैं आपको आज IBBI के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जो है IBC 2016, it provides for the establishment of IPA to enroll and regulate IP as its member. आपको पता ही है, मैंने अभी जस्ट बताया. अब IPA का ये सब का फंक्शंस क्या होता है कि यही चीज़ करना, मॉनिटर करना मेंबर्स को, गैदर करना इन्फॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस, मेलफियंस कहीं पे है तो वो देखना. मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो क्वासी जुडिशियल फंक्शन इसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये एड्रेस करता है कोई भी ग्रीवियंसेस और कंप्लेंट्स भी सुनता है IPA. और जो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वो क्या करता है, ये भी की रोल प्ले करता है इन एफिशिएंट वर्किंग. हाउ? दैट इज़ वेरीफाइंग द क्लेम्स, रनिंग द डेटर्स बिजनेस एंड एक्टिंग एज लिक्विडेटर. ये सब चीज़ देखना. इसका ड्यूटीज़ क्या है कि ये एक रीजनेबल केयर करता है जब भी ड्यूटी परफॉर्म करता है, और टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई करता है, और अलाउ भी करता है IPA को कि भाई तुम इंस्पेक्ट करो रिकॉर्ड और सबमिट करो कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स. किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. ठीक है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली. Now information utilities you know very well. It is what we can say is that it is a collection of database, or we can say centralized electronic database containing about the information on debtors, and such information would be available to the financial institution as well as to the creditors. So now you must be knowing the concept totally about it what I said just now. And if we can talk about the now section 4 even. What does it apply to? This video will be very lengthy. I will be telling about section 4, 7, then afterwards 9, 8, everything I will be telling you in the next session. And this is just a concept based video in order to understand and ingrain the concept involving in the insolvency and bankruptcy code. So thank you everyone. Keep learning.